Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I am fine by the grace of Almighty Allah. I hope that you will also be fine. I am Muhammad Hussain, your mathematics teacher. Welcome you in DPS digital class. Let us start today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Muhammad Hussain, your mathematics teacher. We are doing chapter number 1 of second year mathematics, which is about functions and limits, and today there is third lecture of it. Today's topic is types of functions, and question number 7 to 9 of exercise 1.1. First we discuss types of the functions. Some important types of functions are algebraic functions. Algebraic functions are those functions which are defined by algebraic expressions. We classify algebraic functions as follows. Algebraic functions की हम further types पढ़ते हैं. पहली है polynomial function. A function in which exponents of the variable are non-negative integers is called a polynomial function. यानी ये ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है. नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स आइदर इट इज़ ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर. द जनरल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स रेज पर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज पर एन माइनस वन plus a n minus 1 x raised by n minus 2 and so on a2 x square plus a1x plus a0, where an minus 1 an minus 2 and so on a2 a1 and a0, they are real numbers and are called coefficients, and n minus 1 n minus 2, these are called the exponents, where the coefficients are real numbers and the exponents are non-negative integers. It is called polynomial function of degree n, and an is called the leading coefficient. The domain and range of p of x are subsets of real numbers. If an not equal to 0, then p of x is called a polynomial function of degree n, and an is called the leading coefficient of p of x. Second इसकी type है linear function. If the degree of a polynomial function is 1, then it is called a linear function. अगर polynomial function की degree 1 हो तो फिर उसको linear function कहा जाता है. Its domain and range are the set of real numbers. इसके भी domain और range जो हैं वो set of real numbers हैं. थर्ड टाइप है आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? फॉर एनी सेट एक्स अ फंक्शन आई फ्रॉम एक्स टू एक्स ऑफ द फॉर्म आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन. इट्स डोमेन एंड रेंज इज द सेट एक्स इटसेल्फ. यानी इसमें डोमेन भी एक्स और रेंज भी एक्स द सेट इटसेल्फ होता है. Constant function. Let x and y be sets of real numbers. A function c from x to y denoted by c of x is equal to a for x belongs to x and a belongs to y and fixed is called a constant function. इसमें वेरिएबल की तमाम वैल्यूज़ के लिए जो रेंज है वो फिक्स होता है और दैट इज़ इक्वल टू ए कांस्टेंट a. दिस इज़ कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन. नेक्स्ट टाइप है पॉलिनोमियल फंक्शन की रैशनल फंक्शन. अ फंक्शन आर ऑफ एक्स और द फॉर्म पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स वेयर बोथ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शंस एंड क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 is called a rational function. The domain of rational function r of x is the set of all real numbers of x for which q of x not equal to 0. यानी इसका डोमेन जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन ऐसा रियल नंबर नहीं होगा जिसके ऊपर डिनोमिनेटर इसका 0 बन जाए. सो डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स of x for which q of x not equal to 0.
Second function is trigonometric functions. Second type of function is trigonometric function. पहले हमने पढ़ा polynomial functions, फिर उसकी सब टाइप्स. अब ये सेकंड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. y इज इक्वल टू साइन ऑफ x. पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x. इट्स डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एंड रेंज इज y लेस देन इक्वल देन 1 ग्रेटर देन इक्वल देन -1. Second is y is equal to cosine x. Domain is again set of all real numbers and range is y is less than equal than 1 and y is greater than equal than -1 या -1 से लेकर +1 तक क्लोज इंटरवल इंक्लूसिव है. ये -1 भी शामिल है और 1 भी शामिल है और इन बिटवीन तमाम रियल नंबर्स भी इसके रेंज में शामिल हैं. थर्ड फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y is equal to tangent x. Its domain is set of all real number except odd multiple of pi by 2. या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं x such that x belongs to R and x not equal to 2n plus 1 into pi over 2 where n is an integer. वर्डिंग में इसको कह सकते हैं कि its domain is a set of all real number except odd multiple of pi by 2. इसके डोमेन में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं आएंगे. मसलन पाई बाई 2 नहीं आएगा, 3 पाई बाई 2 नहीं आएगा, 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन. इट्स रेंज इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर. फोर्थ वन इज y इज इक्वल टू कोटेंजेंट x. इट्स डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x नॉट इक्वल टू n पाई where n is an integer. वर्डिंग में इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि इट्स डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई. इट्स रेंज इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर. नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज y इज इक्वल टू secant x. इट्स डोमेन इज अगेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2. यानी कि x such that x belongs to R and x not equal to 2n plus 1 into pi over 2 where n is an integer and its range is y is greater than equal than 1 and y is less than equal than -1. इसके रेंज में 1 और 1 से ग्रेटर, -1 और -1 से लेस तमाम रियल नंबर्स होंगे. नेक्स्ट इज y is equal to cosecant x. Its domain is set of all real numbers except integral multiples of pi. यानी x such that x belongs to R and x not equal to n pi where n is an integer and its range is y is greater than equal than 1 and y is less than equal than -1. ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. y is equal to sin inverse x. इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू साइन y. y की वैल्यू इसमें हो सकती है y इज लेस देन इक्वल देन पाई बाई 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल देन माइनस पाई ओवर 2. और x की वैल्यू x लाइज बिटवीन -1 एंड +1. x इज लेस देन इक्वल देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल देन -1. सेकेंड टाइप इज y इज इक्वल टू कोसाइन इनवर्स x. इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कोसाइन y. Here y is less than equal than pi. ये इसका डोमेन होगा y is less than equal than pi and y is greater than equal than 0 and x is less than equal than 1 greater than equal than -1. Next we have y is equal to tan inverse x implies x is equal to tan y. Here y is less than equal than pi over 2 and greater than equal than minus pi over 2 and x is less than equal than infinite, x is greater than equal than minus infinite. Next type is exponential function. A function in which the variable appears as exponent is called an exponential function. ऐसे function जिसमें variables exponent के तौर पे आते हैं उनको हम exponential function कहते हैं. For example, y is equal to 2 raised per x और y is equal to e raised per ax, etc. Next one is logarithmic function. Logarithmic function, if x is equal to a raised per y, then y is equal to log of x with base a is called a logarithmic function.
ये दो तरह के होते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू 10 यानी उसका बेस अगर 10 हो, देन वी हैव log of x with base 10 written as lgx, which is known as common logarithm of x. इसको ब्रिग्स लॉगरिथम भी कहा जाता है। इफ़ a is equal to e, then we have log of x with base e, इसको हम लिखते हैं ln x। ऐसा log जिसका बेस e हो उसको ln से डिनोट किया जाता है, which is known as the natural logarithm of x. इसको नेपरियन लॉग भी कहते हैं। नेक्स्ट इज हाइपरबॉलिक फंक्शंस। नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज हाइपरबॉलिक फंक्शंस। पहला है साइन हाइपरबॉलिक एक्स इज इक्वल टू ई रेस पर एक्स माइनस ई रेस पर माइनस एक्स ओवर 2। साइन हाइपरबॉलिक एक्स ये इक्वल टू होता है ई रेस पर एक्स माइनस ई रेस पर माइनस एक्स ओवर 2 इज कॉल्ड हाइपरबॉलिक साइन फंक्शन। इसको आप याद कर लें, ये हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। साइन हाइपरबॉलिक एक्स इज इक्वल टू ई रेज पर एक्स माइनस ई रेज पर माइनस एक्स ओवर 2। इट्स डोमेन एंड रेंज आर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सेकंड वन इज कोसाइन हाइपरबॉलिक एक्स ई रेज पर एक्स प्लस ई रेज पर माइनस एक्स ओवर 2 इज कॉल्ड हाइपरबॉलिक कोसाइन फंक्शन। इट्स डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड द रेंज इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इन द इंटरवल 1 2 प्लस इन्फिनिट। 1 इसमें इंक्लूसिव है, 1 की तरफ से क्लोज इंटरवल और प्लस इन्फिनिट की तरफ से ओपन इंटरवल है। सेमी क्लोज इंटरवल भी इसको कहा जाता है। यानी 1 से लेकर प्लस इन्फिनिट तक तमाम रियल नंबर इसके रेंज में शामिल होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लें। डोमेन इसका होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, लेकिन रेंज इसका होता है 1 से लेकर प्लस इन्फिनिट तक। द रिमेनिंग 4 हाइपरबॉलिक फंक्शंस आर, ये दो जो बेसिक थे, बाकी 4 जो ना वो इन्हीं से हम निकालते हैं। जैसे tan हाइपरबॉलिक x ये होता है साइन हाइपरबॉलिक x ओवर कोसाइन हाइपरबॉलिक x। तो साइन हाइपरबॉलिक x की वैल्यू को और डिवाइड कर देंगे कोसाइन हाइपरबॉलिक x की वैल्यू से, तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा ई रेज पर x माइनस ई रेज पर माइनस एक्स ओवर ई रेज पर x प्लस ई रेज पर माइनस एक्स। सिमिलरली कॉट हाइपरबॉलिक x ये होता है कॉस हाइपरबॉलिक x ओवर साइन हाइपरबॉलिक x। तो इसका आंसर आ जाएगा ई रेज पर x प्लस ई रेज पर माइनस एक्स ओवर ई रेज पर x माइनस ई रेज पर माइनस एक्स। सिमिलरली सीकेंड हाइपरबॉलिक x ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन हाइपरबॉलिक x। तो कोसाइन हाइपरबॉलिक x की वैल्यू को उलट देंगे तो ये आ जाएगा 2 ओवर ई रेज पर x प्लस ई रेज पर माइनस एक्स। कॉसिकेंड हाइपरबॉलिक x इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ साइन हाइपरबॉलिक x। इसको हम उलट देंगे तो ये आ जाएगा 2 ओवर ई रेज पर x माइनस ई रेज पर माइनस एक्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस। पहला है साइन इनवर्स हाइपरबॉलिक x इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट फॉर ऑल x। ये आप इसको याद कर लीजिएगा, इसके प्रूफ्स नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। नंबर 2 कोसाइन हाइपरबॉलिक इनवर्स x इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1। थर्ड वन इज tan इनवर्स हाइपरबॉलिक x इज इक्वल टू 1 over 2 log 1 plus x over 1 minus x where x mod is less than 1. Fourth one is cot inverse hyperbolic x is equal to 1 over 2 log of x plus 1 over x minus 1 and x mod is less than 1. Secant inverse hyperbolic x is equal to log of 1 over x plus 1 minus x square root over x. X is less than equal than 1 greater than 0. Cosecant hyperbolic inverse x is equal to log of 1 over x plus 1 plus x square root over x mod x not equal to 0. Next type is explicit functions. Explicit functions, if y is easily expressed in terms of the independent variable x, then y is called explicit function of x. Symbolically it can be written as y is equal to f of x. यानी ऐसे फंक्शन जिसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन के तौर पे लिख सकें, एक साइड पे y हो और दूसरी साइड पे x हो, या उनको हम सेपरेट कर सकें, इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, दे आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x।
Next is implicit functions. If x and y are so mixed up and y cannot be expressed in terms of the independent variable x, यानी कि इसमें x और y वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ इस तरह से मिक्स होते हैं कि हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, then y is called an implicit function of x. Symbolically it is written as f of x y is equal to 0. x और y दोनों एक ही साइड पे अगर हों तो उनको इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता है. फॉर एग्जांपल एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 2. सेकेंड एग्जांपल इज एक्स वाई स्केयर माइनस वाई प्लस 9 ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू 1. दे आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई. नेक्स्ट टाइप इज पैरामीट्रिक फंक्शंस. Sometimes a curve is described by expressing both x and y as a function of a third variable t or theta, which is called a parameter. बाज़ औक़ात हम x आमतौर पे हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में फंक्शन को लिखते हैं, लेकिन समटाइम्स x भी किसी और थर्ड वेरिएबल का फंक्शन होता है और y भी किसी और थर्ड वेरिएबल का फंक्शन होता है. उस थर्ड वेरिएबल को पैरामीटर कहते हैं और इन इक्वेशंस को इस तरह से इक्वेशंस को लिखने को पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहा जाता है. द इक्वेशंस ऑफ द टाइप x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, यानी x जो है वो t का फंक्शन है, एंड y इज इक्वल टू g ऑफ t, और y भी t का फंक्शन है. दे आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द कर्व. फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू a t स्क्वायर, y इज इक्वल टू a t, और x इज इक्वल टू a कोसाइन थीटा, y इज इक्वल टू b साइन थीटा. इसमें t और थीटा जो है ये पैरामीटर हैं और ये इक्वेशंस इस तरह से जो लिखी हुई हैं दे आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशंस. नेक्स्ट वन इज इवन फंक्शन. इवन फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन इज सेड टू बी इवन इफ f of माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी नंबर x इन द डोमेन ऑफ x. यानी आप उस फंक्शन में x की जगह माइनस से x रिप्लेस करें और वो फंक्शन f ऑफ x ही रहे, उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, तो ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन कहा जाता है. फॉर एग्जांपल हम एक फंक्शन लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इसमें बोथ साइड्स आप x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये f ऑफ x के ही इक्वल आ गया है, इसलिए ये f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये एक इवन फंक्शन है. सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस ऑफ x. इसमें आप x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें, सो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस एक्स. अब हमें ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस की प्रॉपर्टी से ये पता है कि कॉस ऑफ माइनस एक्स ये प्लस कॉस ऑफ x के इक्वल होता है, विच इज़ इक्वल टू f ऑफ x. हैंस f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस ऑफ x इज एन इवन फंक्शन. नेक्स्ट टाइप इज ऑड फंक्शंस. अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑड if f of minus x is equal to minus of x for every number x in the domain of f. यानी आप x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें तो वो नेगेटिव ऑफ द फंक्शन बन जाए. एग्जांपल के तौर पे हम ये देखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब. f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसमें आप रिप्लेस करते हैं x की जगह पे माइनस एक्स, सो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब विच इज़ इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स. तो आपने देखा कि f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, इसलिए f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब ये एक ऑड फंक्शन है. एक और एग्जांपल हम देखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x. इसमें आप x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स. अब हमें पता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कि साइन ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है. सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, इसलिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स क्या है, ये एक ऑड फंक्शन है. अब इन फंक्शंस को हम यूज़ करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 1 शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल टू a t स्क्वायर y इज इक्वल टू 2at रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. पैराबोला एक ज्योमेट्रिक शेप होती है और इसकी जनरल इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ये हम 6th चैप्टर में डिटेल में जाके पढ़ेंगे. अभी सिर्फ हम ये देखते हैं कि ये x इज इक्वल टू a t स्क्वायर y इज इक्वल टू a t, ये पैराबोला की जनरल इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को रिप्रेजेंट करता है. तो हम क्या करते हैं, हम ये गिवन इक्वेशंस x इज इक्वल टू a t स्क्वायर को इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं और y इज इक्वल टू 2at को इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं.
अब इसमें से हमारा टास्क ये है कि हमने एलिमिनेट करना है टी को। तो उसके लिए हम इक्वेशन नंबर 2 की स्केयरिंग कर लें। वाई स्केयर इज इक्वल टू 2at होल स्केयर विच इज़ इक्वल टू 4a स्केयर टी स्केयर। अब इक्वेशन 1 में हमारे पास at स्केयर जो है वो x की इक्वल है, तो इसको हम सेपरेट कर देते हैं 4a स्केयर टी स्केयर को ऐसे कि 4a इंटू इसको ब्रैकेट में लिखते हैं at स्केयर। अब भाई इक्वेशन 1 at स्केयर जो है वो x की इक्वल है, तो at स्केयर की जगह पे हम x लिख देते हैं सिंस x इज इक्वल टू at स्केयर, सो y इज इक्वल टू 4ax। यही हमारा टास्क था कि ये दोनों इक्वेशन जो हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस, ये वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हमने दोनों इक्वेशन से t को जब एलिमिनेट किया तो ये y और x में एक इक्वेशन मिल गई जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। सेकंड पार्ट इज शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1, और ये हमने प्रूव करना है कि ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है। एक्स इज इक्वल टू ए कोसाइन थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो हमने क्या किया कि एक्स इज इक्वल टू ए कोसाइन थीटा से ए को दूसरी साइड पे ले गए नीचे, एक्स ओवर ए इज इक्वल टू कोसाइन थीटा। इसी तरह से बी वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा से हमने बी को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, वाई और बी इज इक्वल टू साइन थीटा। इनको इक्वेशन 1 और 2 कह दिया। अब इसमें से हमने थीटा को एलिमिनेट करना है। उसके लिए हमने क्या किया कि स्केयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड देन एडिंग। इक्वेशन 1 और 2 को स्केयर करके लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड में ऐड कर दें और राइट साइड को राइट साइड में ऐड कर दें। तो एक्स ओवर ए इसका स्केयर लेंगे तो एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर, प्लस करेंगे इधर वाई और बी का स्केयर, वाई स्केयर ओवर बी स्केयर, तो राइट साइड पे आ जाएगा कोसाइन स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, कोसाइन स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट वी टेक थर्ड पार्ट, शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा एंड वाई इज इक्वल टू बी टैन थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आती है एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1। यहाँ से भी हमारा टास्क यही है कि हमने थीटा को एलिमिनेट करना है। तो पहले की तरह हमने क्या किया, एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा से ए को दूसरी साइड पे ले गए, तो एक्स ओवर ए इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, वाई इज इक्वल टू बी टैन थीटा से बी को दूसरी साइड पे ले गए, तो हमें हासिल हुआ वाई ओवर बी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को स्केयर करके सबट्रैक्ट कर देंगे। एक्स ओवर ए का स्केयर लिया तो एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर, वाई और बी का स्केयर लिया तो वाई स्केयर ओवर बी स्केयर और सबट्रैक्ट कर दिया। इधर से सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टेंजेंट स्केयर थीटा। अब हमें आइडेंटिटी का पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टेंजेंट स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, इसलिए हमने राइट साइड पे 1 लिख लिया। सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टेंजेंट स्केयर थीटा की जगह पे 1, यही हमने प्रूव करना था कि ये हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट वी टेक क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज हमने प्रूव करनी है। पहली हाइपरबोलिक आइडेंटिटी जो हमने प्रूव करनी है वो साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू कोसाइन हाइपरबोलिक x। अभी जो हमने पढ़ी थी साइन हाइपरबोलिक और कोसाइन हाइपरबोलिक की वैल्यूज़ वो इस पर अप्लाई करेंगे। पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन हाइपरबोलिक 2x, तो हमें पता है कि साइन हाइपरबोलिक x ये होता है ई रेज पर x माइनस ई रेज पर माइनस एक्स ओवर 2। यहाँ पे x की बजाय है साइन हाइपरबोलिक 2x, तो ये बन जाएगा ई रेज पर 2x माइनस ई रेज पर माइनस 2x ओवर 2। x को हमने रिप्लेस कर दिया 2x में। ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड हम लेते हैं विच इज़ इक्वल टू 2 कोसाइन हाइपरबोलिक x इंटू साइन हाइपरबोलिक x। तो साइन हाइपरबोलिक x होता है ई रेज पर x माइनस ई रेज पर माइनस एक्स ओवर 2, और कोसाइन हाइपरबोलिक x होता है ई रेज पर x प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर 2। ये दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं। 2 टाइम ई रेज पर x माइनस ई रेज पर माइनस एक्स ओवर 2 एंड ई रेज पर x प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर 2। 1 2 इससे कैंसिल हो जाता है। अब इस पर फार्मूला लगाते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला। तो जब ये फार्मूला हम लगाएंगे तो ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर लग जाएगा,
तो ये बन जाएगा ई रेज पर 2x माइनस ई रेज पर माइनस 2x, एक टू नीचे रह जाएगा, एक इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यही लेफ्ट हैंड साइड में भी यही आंसर आया और राइट हैंड साइड में भी यही आया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था। साइन हाइपरबोलिक 2x ये होता है 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू कोसाइन हाइपरबोलिक x। Now we take second part of this question, which is secant hyperbolic square x is equal to 1 minus tan hyperbolic square x. Left hand side secant hyperbolic square x is equal to 2 over e raised पर x plus e raised पर माइनस x और इसका स्केयर, क्योंकि cos hyperbolic x होता है e raised पर x plus e raised पर माइनस x over 2, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये बन जाएगा secant hyperbolic x which is equal to 2 over e x plus e raised पर माइनस x। ये आ गया। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, इसमें है 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्केयर x। tan हाइपरबोलिक x की वैल्यू होती है e रेज पर x प्लस माइनस e रेज पर माइनस x और e रेज पर x प्लस e रेज पर माइनस x। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और इसका ये स्केयर ले लिया। नेक्स्ट हमने क्या किया, ऊपर वाले का स्केयर ऊपर और नीचे वाले का स्केयर नीचे। नेक्स्ट ये एलसीएम ले लिया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा e रेज पर x प्लस e रेज पर माइनस x होल स्केयर माइनस ये e रेज पर x माइनस e रेज पर माइनस x होल स्केयर। अब आप इनके स्केयर्स ओपन कर लें, a प्लस बी होल स्केयर वाला फार्मूला लगाया, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा e रेज पर 2x प्लस e रेज पर माइनस 2x प्लस 2 माइनस ब्रैकेट में यहाँ पे ये माइनस है तो a माइनस बी होल स्केयर वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा e रेज पर 2x प्लस e रेज पर माइनस 2x माइनस 2 और ये e रेज पर x प्लस e रेज पर माइनस x होल स्केयर। अब जब ये पैरेंथेसिस को रिमूव करेंगे, बाहर माइनस है तो अंदर वालों के ये साइंस चेंज हो जाएंगे। ये हमने अंदर वालों के साइन चेंज कर दिए हैं। अब e रेज पर 2x और ये माइनस e रेज पर 2x ये कैंसिल हो जाएंगे, e रेज पर माइनस 2x और ये माइनस e रेज पर माइनस 2x ये कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर बचेगा 2 प्लस 2 4 और नीचे है e x प्लस e माइनस x स्केयर, तो ये होल का स्केयर करेंगे तो 4 की जगह 2 लिख देंगे। तो यही राइट हैंड साइड में भी यही था, लेफ्ट हैंड साइड में भी यही था कि 2 ओवर e रेज पर x प्लस e रेज पर माइनस x होल स्केयर। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी सीकेंट हाइपरबोलिक स्केयर x इज इक्वल टू 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्केयर x। नाउ वी टेक थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये थर्ड आइडेंटिटी है हाइपरबोलिक की। कोसाइन हाइपरबोलिक स्केयर x इज इक्वल टू कोटेंजेंट हाइपरबोलिक स्केयर x माइनस 1। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं कोसाइन हाइपरबोलिक स्केयर x, तो ये होता है 2 ओवर e रेज पर x माइनस e रेज पर माइनस x होल स्केयर, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक x इसके इक्वल होता है e रेज पर x माइनस e रेज पर माइनस x ओवर 2, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये कोसिकेंट हाइपरबोलिक x 2 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। नाउ टेक राइट हैंड साइड विच इज़ कॉट हाइपरबोलिक स्केयर x माइनस 1। कॉट हाइपरबोलिक x होता है e रेज पर x प्लस e रेज पर माइनस x और e रेज पर x माइनस e रेज पर माइनस x। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, ऊपर वाले का स्केयर ऊपर नीचे वाले का नीचे किया, फिर हमने एलसीएम ले लिया, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके स्केयर्स ओपन किए और जब पैरेंथेसिस रिमूव की तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये सारे कट जाएंगे, सिर्फ प्लस 2 ऊपर बचेगा तो ये आ जाएगा 4 ओवर e रेज पर x माइनस e रेज पर माइनस x होल स्केयर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ओवर e रेज पर x माइनस e रेज पर माइनस x होल स्केयर विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। So we have proved the identity cosecant hyperbolic square x is equal to cot hyperbolic square x minus 1. Now take question number 9. Determine whether the given function is even or odd. F of x is equal to x cube plus x. तो हम इसमें रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसिंग x by माइनस x. F of माइनस x is equal to माइनस x होल क्यूब प्लस माइनस x. माइनस एक्स क्यूब होता है माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस कॉमन ले लिया एक्स क्यूब प्लस एक्स और एक्स क्यूब प्लस एक्स होता है एफ ऑफ एक्स के, तो ये आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो तो फंक्शन इज ऑड होता है, देयरफॉर दिस गिवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन। नाउ वी टेक सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. Determine whether the given function is even or odd. अब इसमें f of x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल स्केयर है।
आप इसमें एक्स प्लस टू होल स्केयर को का स्केयर ओपन कर दें, एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 4। अब आप इसमें एक्स की का माइनस एक्स रिप्लेस करें, माइनस एक्स होल स्केयर प्लस 4 इंटू माइनस एक्स प्लस 4, तो ये आ जाता है एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 4, जबकि हमारे पास था ये एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 4। तो आप देखते हैं कि ना तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स की इक्वल आया और ना ही ये एफ ऑफ एक्स की इक्वल आया। इस केस में कि जब एफ ऑफ माइनस एक्स ना तो माइनस एफ ऑफ एक्स की इक्वल हो और ना ही एफ ऑफ एक्स की इक्वल हो, हम कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। नाउ वी टेक फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन एंड ऑड। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़ पावर 2 और 3 प्लस एक्स। इसमें आप एक्स की का माइनस एक्स रिप्लेस करें, रिप्लेसिंग एक्स बाई माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स रेज़ टू पावर 2 और 3 प्लस 6। इसको हमने थोड़ा सा ऐसे रीअरेंज किया कि 2 और 3 को स्प्लिट कर दिया, 2 इंटू 1 ओवर 3, तो माइनस एक्स इसका स्केयर बन गया और फिर होल की पावर 1 ओवर 3 प्लस 6। जब माइनस एक्स की पावर 2 लेंगे तो ये एक्स स्केयर बन जाएगा, प्लस एक्स स्केयर बन जाएगा। तो एक्स स्केयर की पावर 1 ओवर 3 प्लस 6, फिर उसको वापस मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू 1 ओवर 3, 2 और 3, सो एक्स की पावर 2 और 3 प्लस 6 जो कि एफ ऑफ एक्स की इक्वल है। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। Now we have assignment, which question number 1, you have to show that the parametric equations x is equal to a cos t plus y is equal to a sin t represent the equation of circle x square plus y square is equal to a square। इसमें भी आपने उसी तरह से t को एलिमिनेट करना है। दूसरा पार्ट है प्रूव द आइडेंटिटी cos hyperbolic square x minus sin hyperbolic square x is equal to 1। Question number 3 is determine whether the given function is even or odd। फंक्शन है f of x is equal to x into square root of x square plus 5। This is end of lecture. Thank you.